So let us start the 95th one. Let's read the question first. Consider the following statement in relation to Comptroller and Auditor General of India. So Auditor General of India के बारे में आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल किस पढ़ लिए थे? Yes, sir. Article 148. We have read the constitutional. Next, we have to see the other statements. के roles and responsibilities के बारे में. Please read. 95. Please read. He audit all expenditure from the Contingency Fund of India and Public Account of India, as well as the Contingency Fund of each state and Public Account of each state. So he audits. माने Comptroller and Auditor General of India audits all expenditure from the Contingency Fund of India and the Public Fund of Public Account of India. तो इधर क्या है? फ्रॉम द कंटिजेंसी नहीं है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अच्छा जी सर। क्या है सर? ये दोनों भी स्टेट और कंट्री दोनों के लिए अलग अलग रहते हैं? हाँ, ये सेंट्रल और स्टेट। हाँ, बट he can monitor all expenditure from the consolidated fund of India and the public account of India as well as contingency fund of India of each state and public account of India. समझ में आया? Yes, sir. जी सर। He audit the accounts of any other authorities when requested by the president or governor. So whenever अगर बुला के बोले अगर ऑडिटिंग करके दे दो बोल के, तो क्या है? नहीं बोल के नहीं बोलते हैं टैग। ठीक है, कौन पूछना? President or governor. प्रेसिडेंट या गवर्नर। नेक्स्ट सर एनी अदर अथॉरिटी मतलब कौन आते? अदर अथॉरिटी माने गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर बोल रहा हूँ। बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर माने कोई भी किसी का भी अकाउंट चेक करना है तो प्रेसिडेंट और गवर्नर रिक्वेस्ट करे तो जाके चेक कर सकते। नेक्स्ट For example, the audit of local bodies. He ascertains and certifies the net proceed of the any tax or duty. Article 279. His certificate is final. माने नेट ड्यूटी एनी टैक्स, नेट प्रोसीड्स माने कितने किसको खर्चा निकाले बाद में, प्रोसीड्स आ गया ना, खर्चा निकाले बाद में जो आता उसको क्या है? कंफर्म करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 279 एंड its certificate is final. Next, The net proceed means the proceed of a tax or a duty minus the cost of the collection. minus the cost of the Collection. Yes. Next, The tax submit 3 audit reports to the President audit report on appropriation account, audit report on finance account, and audit report on public undertaking. so the CAG submits 3 कितने रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं? CAG 3 कौन से? Audit report on appropriation, audit report on finance accounts, audit report on public undertaking. undertaking. ठीक है, याद रखिए। 96 क्वेश्चन फिर कैग के बारे में ही है। Yes. CAG of the India is only performing the role of an auditor general and not a controller, but in Britain
it has the power of both controller as well as auditor general. तो ये पोस्ट अपन कहाँ से लिए? ब्रिटिशर से लिए, ब्रिटेन से लिए, जी। टैग। जी। लेकिन ब्रिटिशर्स जो जब पोस्ट लिए उधर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। इंडिया में नाम तो दे दिए लेकिन उसको उतनी जिम्मेदारियां नहीं दी। ठीक है, नेक्स्ट। In India, the CAG audit the accounts after the expenditure is committed. इन Ex इंडिया post कैग ऑडिट्स द अकाउंट्स आफ्टर द एक्सपेंडिचर इज, माने खर्चा करे बाद में। ठीक है, yes, पोस्ट फैक्टो पहले पैसे दे देते, फिर क्या खर्चा करे फिर चेक करते। yes. In the UK, no money can be drawn from the public exchequer without the approval of the CAG. तो यूके में क्या है, इंडिया में क्या है, पैसा खर्चा करे बाद में आके पूछते हैं क्या हुआ। जी। यूके में क्या है, पैसा देने से पहले क्या है, खजाना, एक्सचेकर माने खजाना, गवर्नमेंट का टैक्स, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, जी। इसको बोलते हैं एक्सचेकर, गवर्नमेंट का पैसा। ठीक है, नेक्स्ट। सुमो आईना दे वो तेरा दे। हेलो, नेक्स्ट। In India, CAG is not a member of parliament, while in Britain, CAG is a member of House of the Common. तो इंडिया में कैग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, नहीं है, बट ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन माने उधर की लोकसभा में इज अ मेंबर। member है. राइट, तो बात Only the office of the AGI. नेक्स्ट। एक मिनट, लेट अस गो टू द क्वेश्चन। Yes, sir. जो क्वेश्चन में थे, Hmm. 97 98 या 90. 98, प्लीज रीड द क्वेश्चन। Consider the following in relation to Attorney General and Advocate General. आर्टिकल नंबर और आर्टिकल पूछ रहा हूँ और उसके बारे में क्वेश्चन आप पूछ। तो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट। And Advocate General. सर ये दोनों पोस्ट के काम क्या रहते हैं? अब पढ़ेंगे। Yes. Only the office of the Attorney General of India is created by the Constitution. So only the office of the So AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया constitutional body है, Attorney General of India is a constitutional body under article number 76. 76. Next. Article 76 does not mention about the Solicitor General and Additional Solicitor General. So article 76 is किसको mention कर रहा हूँ? Attorney General of India, but does not mention Solicitor General is not a constitutional body. याद रखिए। Yes, sir. Solicitor General of India is a statutory body and not a constitutional one. तो सॉलिसिटर जनरल क्या है? स्टैट्यूटरी, माने कानून से बनाए हुए पोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। The Attorney General of India is appointed by the President. तो कौन अपॉइंट करे अटॉर्नी जनरल को? President. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट। Yes. He must be a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court. सो क्या काबिलियत रहना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के वास्ते? Supreme Court के जज बनने की काबिलियत रखना। Yes, sir. नेक्स्ट। The Constitution does not contain the procedure and ground for his removal. The Constitution does not contain the procedure and grounds for his removal. Next. फिर उनको प्रेसिडेंट ही लिख सकते। लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट कर देते, लेकिन अगर जैसा गवर्नमेंट बदल जाती उसको निकाल देते। ओके। तो एक ऑफिशियल प्रोसीजर नहीं है निकालने का। जी।
गवर्नमेंट देखिए, ऑफिशियल ऑफिशियल प्रोसीजर किस किस का नहीं है? ऑफिशियल प्रोसीजर, ऑफिशियल प्रोसीजर, क्या नाम कैग है? अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं, ऑफिशियल प्रोसीजर। इसके गवर्नर का ऑफिशियल प्रोसीजर नहीं है निकालने का, और अटॉर्नी ओके जनरल का भी नहीं है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट। और सर कैग का, क्या बोले? कैग कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल का। रिमूव बाय द प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा ओके, ओके सर। He holds office during the pleasure of the president. जी। Attorney General enjoy all the privileges and immunities that are available to a member of parliament. क्या है? ये वर्ड ऑफिसर बीइंग अ प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। Yes. मैंने गवर्नमेंट रखी तो रखी रहता ना। नेक्स्ट। Attorney General enjoy all privileges and immunities that are available to a member of parliament. Parliament. So he can come in the parliament and he can participate in the discussion but cannot vote. Vote. याद रखो। Yes, sir. He remuneration of a Attorney General of India is not fixed by the Constitution, and he receives such remuneration as the President may determine. Remuneration रेम्यूनरेशन माने तनख्वाह। तनख्वाह, अच्छा, रेन अलाउंस। तो एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। प्रेसिडेंट का नाम है गवर्नमेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट आर्टिकल 28। 6 वही अटॉर्नी जनरल का ही। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल के बारे में। Yes, sir. While the Article 76 provided for the office of Attorney General, Article 165 provided for the office of Advocate General. आर्टिकल 76 किसको बता रहा? अटॉर्नी जनरल को बता रहा अटॉर्नी जनरल। और आर्टिकल नंबर 165 इज फॉर है, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट। Attorney General is a highest law officer of the country and Advocate General is a highest law officer of state. अच्छा, okay. अच्छा, नेशनल लेवल पे अटॉर्नी जनरल है और स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल। Advocate General. एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट। While the Attorney General must be a person who is qualified to be appointed a judge of Supreme Court, Advocate General must be a person qualified to be a judge of High Court. Okay. जज ऑफ हाई कोर्ट। तो अटॉर्नी जनरल कौन है एट Yes. प्रेजेंट? हु इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नाउ? हु इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नाउ? बोलिए सर। डायरेक्ट आ जाता है, ये पूछना याद रहना है आपकी। अभी थे सर, भूल गए। वो एग्जाम तक याद रखना पड़ता ना। Venkataraman. वेंकटा सुब्रमणी। Venkataraman. और एक क्या है, हु इज एडवोकेट एडवोकेट जनरल ऑफ तेलंगाना? बीएस प्रसाद। अच्छा, DS प्रसाद। नेक्स्ट 99। सो उसके बाद क्वेश्चन। देखो, लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन है 100 वाला। सॉलिसिटर जनरल के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नॉट वन। Consider the following statement in relation to Planning Commission and Niti Aayog. प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो सही है गलत है बताओ। ठीक है, Okay. So 101.
कौन सा है? 99 वाला 99 क्वेश्चन था ना? अपन बट वहां पर क्वेश्चन 101 पढ़े सर, लेकिन 99 क्वेश्चन। ओके, 99 क्वेश्चन पढ़िए। Consider the following in relation to Union Territory of India. कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी ऑफ Territory of इंडिया। India. ठीक है, अमेंडमेंट से है ये क्वेश्चन। 99 वाला पढ़िए। ये अमेंडमेंट वी हैव डिस्कस्ड डिटेल इन अमेंडमेंट्स। प्लीज रीड। Yes. Even after the large-scale reorganization of the state in 1956, the political map of India underwent continuous change due to the pressure of popular agitation and political condition. Dadar and Nagar Haveli, the Portuguese ruled this territory until its liberation in 1954. It was converted into a Union Territory of India by the 10th Constitutional Amendment Act 1961. 1961। 1. तो क्या है? ये पूछ सकता आपको, दादरा एंड नगर हवेली किसकी कॉलोनी थी? इट वाज Portuguese. पोर्चुगीज कॉलोनी। कब Yes. लिबरेशन हुआ? 1954 में 1954 में के बाद यूनियन टेरिटरी कब बना है? कौन से अमेंडमेंट से बना है? 10th Constitutional Amendment Act 1961. 1961 में बना है। उसके बाद Goa, Daman and Diu, India acquired these three territories from Portuguese by means of a police action in 1961. They were constituted as a union territory by the 12th Constitutional Amendment Act 1962. Okay. तो क्या है? गोवा, दमन एंड दीव, इंडिया एक्वायर्ड दिस थ्री टेरिटरीज। गोवा, दमन एंड दीव, तीन Yes. है ये, फ्रॉम पोर्चुगीज बाय मींस ऑफ पुलिस एक्शन। मींस ऑफ, जैसे हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ था ऑपरेशन पोलो, Operation Follow. Yes, वैसे sir. ही उधर भी पुलिस एक्शन हुआ 1961 में। Okay. उसके 12th बाद Constitutional Amendment Act 1962 में अमेंड हुआ है। दादरा एंड नगर हवेली कौन सा अमेंडमेंट है? 10th Constitution. गोवा, 19 दमन एंड दीव 12 12th Constitution. 1961 और 1962 के बाद। Yes, नेक्स्ट। sir. Later, in 1987, Goa was conferred a statehood. सो 1987 में पहले गोवा को यूटी बनाए थे, फिर उसके बाद में State बना दी। स्टेट बना। ठीक है, नेक्स्ट। Puducherry, the territory of Puducherry comprises the former French establishment in India known as Puducherry. Karikal, पुडुचेरी क्या है? फ्रेंच के अंडर था। ये गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली ये पूरे पोर्चुगीज के अंडर थे, लेकिन पुडुचेरी वाज अंडर फ्रेंच French. एस्टेब्लिशमेंट। Yes. चार हिस्से हैं Puducherry, इसके। Karikal, एक पुडुचेरी, कराईकल, माहे एंड यानम। Yanam. नेक्स्ट। The French handed over this territory to India in 1954. Subsequent कब दे दिए? 1954 में। पोर्चुगीज भी 1954 में चले गए, फ्रेंच भी 1954 में चले गए। नेक्स्ट। Subsequently, it was administered as a acquired territory till 1962, when it was made a union territory by the 14th Constitutional Amendment Act. इन लोग फ्रेंच वाले चले गए बाद में, ऐसा क्या स्टेटस दिया लोगों को? एक्वायर टेरिटरी का स्टेटस दिया। जी। फिर उसके बाद में 8 साल के बाद यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया, 14 अमेंडमेंट। Yes, sir. Ladakh became a UT by the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. तो लद्दाख यूटी कब बना? 2019 में।
So it was all about the union territories. याद रखिए 100. The Solicitor General of India. क्वेश्चन अगर आया आपको, क्या जी सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं है, तो फिर क्या है? स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी बॉडी। बॉडी है. नेक्स्ट. जी, the Solicitor General of India is a subordinate to the Attorney General of India, which is only a statutory body. यस. नेक्स्ट. They are the second law officer of the country. So Solicitor General of India is the second law officer Law. of the country. First is Attorney General. Second, Yes. Solicitor General. Solicitor General. Unlike the post of Attorney General of India, which is the constitutional post under Article 76 of the Constitution of India, the post of the Solicitor General and the additional Solicitor General are merely statutory. Are merely statutory. ज्यादा पोस्ट हाईएस्ट किसका है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का है. नेक्स्ट. एजी का है। जी सर, एडिशनल सॉलिसिटर और एक दूसरा है क्या? हाँ, और एक उसके साथ सॉलिसिटर में के साथ सॉलिसिटर का हाथ बटने के बाद एडिशनल. अच्छा एक आदमी काम नहीं कर सकता ना. सर, उसका काम एडवाइस देना, हाथ के नीचे जैसा रहना. जी, जैसा अटॉर्नी जनरल को सॉलिसिटर जनरल है, एडवोकेट जनरल को भी रहते क्या वैसे के नीचे? हाँ, स्टेट एडिशनल लेवल। एडवोकेट जनरल रहता है ना. स्टेट के एडिशनल स्टेट के अंदर भी रहते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल. अगर गवर्नमेंट चाहिए तो बना सकते अच्छा, ओके, अब है सर। होंगे, पता नहीं. गवर्नमेंट चाहे तो बना सकते ओके. हैं. Next. Appointment committee of the cabinet recommends the appointment and president officially appoint the solicitor general. Okay. तो कौन रिकमेंड करते नाम? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ACC, recommend the name for the solicitor general and is appointed by the president only. Next. The proposal for appointment of solicitor general, additional solicitor general is generally moved at the level of joint secretary or law secretary in the Department of Legal Affairs, and after obtaining the approval of the Minister of Law and Justice, the proposal goes to a appointment committee of the cabinet and then to the president. पहले नाम किधर डिस्कस होता? लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट में डिस्कस होता नाम. फिर उसके बाद में उधर से अप्रूव हो गया तो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एंड देन फिर उसके बाद में ACC, फिर देन प्रेसिडेंट. ठीक है. पहले लॉ मिनिस्ट्री. नाम किसी को बनाना है तो क्या है? मूव एट सेक्रेटरी और लॉ सेक्रेटरी इन द लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट. फिर उसके बाद में किधर आता नाम? रिमूव करने के लिए ना सर। रिमूव नहीं, अप्रूवल अप्रूवल के वास्ते. यस सर. Legal affairs and then approval of the Minister of Law and Justice, and then a proposal goes to the ACC and then to the President. Next. 101. प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में पढ़ना. Please read. Planning Commission, National Development Council (NDC) and Niti Aayog are neither statutory body nor constitutional body, but merely executive body. क्या है? They report to the Prime Minister. Prime Minister, yes sir. They were set up by resolution by the government. They are just executive bodies. Executive bodies कैसा बनते? Resolution of the government. एक पेपर पे लिख देते आज से लोग तैयार, तो तैयार. अच्छा. Planning Commission was based on top-down model, whereas Niti Aayog was based on bottom-up model. तो प्लानिंग कमीशन वाज बेस्ड ऑन टॉप डाउन मॉडल, माने ऊपर से डिसीजंस आते थे, नीचे पूरा फॉलो करना पड़ता था. अब नीति आयोग क्या है? नीचे से पूरे क्या है? डाउन से क्या है? पूरे तो क्या मशवरे लेते और ऊपर
इम्प्लीमेंट होता। follow करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, planning commission was a centralized approach where police used to the frame at the पॉलिसीज, वेयर पॉलिसीज यूज, पॉलिसी sorry, where policies used to be framed at the center and shared across the state, but Niti Aayog involves CMs of the state through a governing council, which is decentralized approach. तो क्या प्लानिंग कमीशन में क्या करते थे? सीएम को अलाउ नहीं करते थे पहले। वहाँ आते थे बट ज्यादा रोल नहीं था उन लोगों का कुछ भी। जी तो प्लानिंग कमीशन एक डिसीजन ले लेते थे, बस वो डिसीजन कन्वे कर सबको देते थे कि भाई आपको ये सुनना काम पड़ता करना है, बस। अब नीति आयोग में क्या है, पूरों के सीएम्स को बुला के मशवरे लेके काम कराते, ठीक है। नेक्स्ट, इज रीड। Planning Commission was also headed by the Prime Minister, like the way Niti Aayog currently is. प्लानिंग कमीशन इज हेडेड बाय, चेयरपर्सन पीएम रहते। दोनों के भी चेयरपर्सन कौन है? पीएम ओनली। पीएम Prime Minister was also the ex officio chairperson of NDC. तो प्राइम मिनिस्टर वाज द चेयरपर्सन ऑफ एनडीसी। अब नेशनल ये तो नहीं है, अब एनडीसी तो नहीं है, निकाल दिया। नेक्स्ट, सर एक अफिशियो मतलब उसके साथ साथ जैसा कि वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक पोस्ट मिली तो ऑटोमेटिकली दूसरी पोस्ट भी मिल जाती है उनकी, वैसा। नोन एज एक्स ऑफिशियो। नेक्स्ट, While the Planning Commission could allot fund to the state and ministers, Niti Aayog is a merely is an advisory body. प्लानिंग कमीशन के पास क्या पावर था? पैसे देने का पावर था, फंड देने का पावर था। See, लेकिन नीति आयोग क्या, खाली एडवाइस देने का पावर है, बस सिर्फ एडवाइस देते, निकल जाते, ठीक है। नेक्स्ट, yeah. नेक्स्ट 102। The chairperson of Niti Aayog is the Prime Minister of India, तो हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? PM. नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट, Governing Council comprises the Chief Ministers of all the state, Chief Minister of इसमें Union इसमें देखो, Territory. इसमें क्या था, नेक्स्ट जो था ना, लास्ट टाइम जो प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन आने से पहले एक प्लानिंग कमीशन था, एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, NDC. जी Yes, sir. ठीक है। प्लानिंग कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन एक अलग बॉडी और एनडीसी NDC अलग बॉडी। अलग body. प्लानिंग कमीशन में डिसीजंस होते थे और फंड्स आते थे, फंड देते थे। एनडीसी में मिला के पूरों को बुला के डिस्कशन होता था इधर। इट वॉज अ डिस्कशन मेजरली ऑन, इधर डिसीजन Fund थे, and decisions. जी. इट वॉज जस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। और ये एनडीसी क्या था? डिस्कशंस बॉडी था, अलग अलग, इन दोनों अच्छा के कोऑर्डिनेशन से काम होता था, अच्छा Okay. ठीक है। लेकिन इसको स्ट्रक्चर को खत्म करके क्या लाए, एक ही नीति क्या आयोग लाए, नीति आयोग लाए। नीति आयोग लाए, ठीक और है। NDC को इसके dissolve अंदर ही कर क्या करे, एक एक क्या है, गवर्नर, एक अंदर ही क्या है करे, एक बॉडी बना दिया इन्होंने, गवर्निंग काउंसिल। जी. और प्लानिंग कमीशन के पास पैसे देने का पावर था, लेकिन नीति आयोग के पास पैसे देने का पावर नहीं है। नीति आयोग खाली एडवाइस दियो, नीति आयोग क्या है, एडवाइस दियो, पैसे क्या है, एज पर द फाइनेंस कमीशन पढ़े, जी. फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से पैसे दिए, अच्छा. ठीक है। पहले क्या था, हमेशा फाइनेंस कमीशन इज अ क्या बोलते हैं, इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 280 के तहत। Yes. तो कभी भी प्लानिंग कमीशन के सामने और फाइनेंस कमीशन जब आता तो प्लानिंग कमीशन
ज्यादा पावरफुल हो जाता था, फाइनेंस कमीशन हाँ थोड़ा कम हो जाता था, तो हमेशा देर देर वुड बी अ, नहीं जमती थी Class. दोनों की। Yes. तो ये रीजन की वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर ही खत्म कर दिए। क्या करे, खाली एक नीति आयोग बना दिए जो खाली एडवाइस देना, जिसमें गवर्नमेंट काउंसिल है डिस्कशन के वास्ते, और ये डिस्कशन किधर होते और पैसे किसके हिसाब से देते, Finance. फाइनेंस कमीशन Finance के हिसाब Commission. से देते। ठीक है, नेक्स्ट। Governing Council comprises the Chief Minister of all state, Chief Ministers of UT with legislatures, that is Delhi, Puducherry, and Jammu and Kashmir, and Lieutenant Governor of other union territories. पता है, एक चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर है, उसके अंदर क्या है, गवर्निंग काउंसिल है, टीम इंडिया बोल के रहता है। गवर्निंग काउंसिल है क्या, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूटीज विद लेजिस्लेचर, अगर सीएम नहीं है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते। ठीक है, नेक्स्ट। फिर रीजनल, अब क्या है, ये तो नेशनल लेवल पे बना दिए, अब स्टेट लेवल पे भी क्या है, रीजनल काउंसिल्स बने। ठीक है, जो इमीडिएट इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट। Okay. These are convened by the Prime Minister and comprised by the Chief Minister of the state and Lieutenant Governor of UT in the region. नेक्स्ट। These all chaired by the chairperson of Niti Aayog are his nominee. सो ये पूरे अगर मीटिंग हम बुलाए तो या तो चेयरपर्सन हो या चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, Narendra Modi, Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर, या तो प्राइम मिनिस्टर आ गए, या प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर विल से कि भाई मेरी तरफ से नंबर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट। Special invitees such as experts, specialists, and practitioners with relevant दो, domain knowledge as a special invite डोमेन domain लेट knowledge. लेट लेट जब का जब करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, लेट लेट द स्टेटमेंट गेट कंप्लीटेड, फिर करेक्शन कर सकते हो। ओके सर फिर से पढ़िए। Domain knowledge as a special invitee are nominated by the Prime Minister. तो क्या है, स्पेशल इनवाइटीज रहते, स्पेशल इनवाइटीज सच एज एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिशनर्स, माने अपने अपने दायरे में आप जो चीज में अच्छे हैं, अगर वो आपकी जरूरत पड़ी तो बुला लेते हैं आपको। अब आप Okay. किसमें अच्छे हैं, अगर जरूरत पड़ी वो डोमेन नॉलेज में बुला लेते हैं, अगर इंजीनियरिंग में अच्छे है, साइंस में अच्छे है, वटेवर, जब जरूरत पड़ी तो आपको प्राइम मिनिस्टर इनविटेशन दे देते, आ जाओ जरा मीटिंग अटेंड करो, एडवाइस सुनो। ठीक है, नेक्स्ट। 103, Protection of Human Rights Act of 2019. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 2019 जो पास हुआ लॉ। नेक्स्ट पढ़िए। It provided that a person who has been a judge of Supreme Court has been made eligible to be appointed as chairperson of National Human Rights Commission. सो पहले पहले क्या था बोले तो, जो सीजेआई थे ना, Hmm. जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ही बन सकते थे चेयरपर्सन। Okay. अब उसको अमेंड करे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट जो है 1990 का पुराना है, पहले ओनली सीजीआई वुड हैव बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। लेकिन अब क्या है, उसको अमेंड करके क्या बोले, अगर सुप्रीम Judge of कोर्ट के Supreme जज भी अगर बन गया तो आप भी चेयरपर्सन अपॉइंट हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट। Court. It increased the number of members of the National Human Rights Commission from 2 to 3, out of which at least one has to be a woman. अच्छा. सो पहले क्या थे, 2 मेंबर थे, अब क्या करे, 2 को इंक्रीज करके 3 करेंगे. 3 करे, उसमें से क्या एक कंपलसरी है, woman होना. Woman. 1 member has to be woman। नेक्स्ट। It reduced the term of chairperson of member of the National Human Rights Commission as well as the State Human Rights Commission from 5 to 3 years. अच्छा. तो क्या करे,
बहुत ज्यादा हो जा रहा 5 साल, 5 साल नहीं दे सकते बोल के क्या कर दिया उसको 3 साल कर दिए। 3 साल कर। ठीक है, सो वर्ल्ड सबको मौका मिलना बोला। 2019 के एक्ट के जरिए, यस, अमेंडमेंट के जरिए। पहले अमेंडमेंट पांच के साल था, जरिए। पहले क्या था, सिर्फ सीजीआई थे और 2 मेंबर्स थे, और हाँ 5 साल तक एक बार ऑक्यूपाई करे तो 5 साल तक फुल सीट, नो वैकेंसी। तो क्या करे, यस सीजीआई के अलावा कोई भी जज भी अगर है जज। तो सुप्रीम कोर्ट चेयर बन जा चेयरपर्सन बन सकते। सकते हैं। फिर है कि नहीं, 2 मेंबर्स रहे तो 3 मेंबर्स इंक्रीज कर दिए, उसमें से एक वुमेन रहना। फिर है कि नहीं, 5 साल का टर्म को 3 ईयर का टर्म कर दिए चेयरपर्सन का। माने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलना। ठीक है, जी। अब सीजेआई बन के रिटायर होना बोले तो 5 साल को एक बार, 3 साल को एक बार ऐसा होता। लेकिन जजेस तो अच्छा। रोज रिटायर होते रहते, जी। तो उन लोगों को मौका मिलना, तो इन्हें रोज रिटायर हो तो होते चेंज होते रहता। 33 जजेस है, 34 जजेस है, ठीक है, जी सबको सर। मौका मिलना बोल के 5 से 3 साल कर दिए। ठीक है, अगर आप जज बने तो फायदा है, या तो कम से कम मेंबर तो ही बन सकते। नेक्स्ट। सर बहुत लंबा ज्यादा हो। The commission has its own nucleus of investigation staff. आवाज कम आ रही है आपकी, माइक डिस्टर्ब हुआ। No, sir. The commission has its own nucleus of investigation staff for investigation into complaint of human right violation. अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ तो ठीक है, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन इन्वेस्टिगेट, माने इसका इसकी ओन टीम रहती है। उसके बाद It is empowered to utilize the service of any officer or investigation agency of central government or any state government for the purpose. फॉर द पर्पस माने कोई भी अगर गवर्नमेंट की मशीनरी को इस्तेमाल कर सकते। नेक्स्ट। Inter- yes. It can look into a matter within 1 year of its occurrence. That is, the commission is not empowered to inquire into any matter after the expiry of 1 year तो एक from साल the से date. 1 साल से पुराने अगर केस आया तो ह्यूमन राइट्स कमीशन उसको इंक्वायर Hmm. नहीं कर सकता, 1 साल के अंदर ही कर देना। और 1 साल के अंदर कोई कंप्लेंट भी नहीं दिए तो सो मोटिव भी नहीं ले सकते। ठीक है, माने खुद से भी नहीं ले सकते, कंप्लेंट क्या आना। क्या और एक बार बोलिए सर। कंप्लेंट सर आया और ना, एक बार बोलिए। कंप्लेंट आना, कोई आके बोलना मेरे साथ गलत हुआ, और वो भी 1 साल के हाँ। अंदर, अच्छा। तो उस पे इन्वेस्टिगेशन करा सकते। अगर कोई आके कंप्लेंट भी नहीं दिए और 1 साल भी हो गया तो आपको मालूम रहे तो भी आप कुछ भी नहीं कर सकते, खुद से लोग आप कुछ भी नहीं कर सकते, कंप्लेंट आके बोलना। ठीक है, Okay. नेक्स्ट। It is not empowered to act when human right violation from private parties take place. माने गवर्नमेंट के हाथों से हुआ तो ही, अगर ह्यूमन राइट वायलेशन गवर्नमेंट के हाथ से हुआ तो कार्रवाई हो सकती है। अगर नॉर्मल आदमी कोई करे, प्राइवेट आदमी ना करे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ बोलेगा तो दे कांट हेल्प। ठीक है, नेक्स्ट। The chairperson and एक member of मिनट, लेट अस गो member टू द क्वेश्चन। governor. क्वेश्चंस नहीं करा दूंगी थी, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना है क्वेश्चंस। सब कर रहे हैं। ये भी पढ़ लिया ह्यूमन राइट कमीशन। 105 नंबर। प्लीज रीड। Which of the following constitutes the committee to make recommendation in the appointment of member of state human right commission of a state? सो स्टेट का ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर बनाने, मेंबर्स के लिए वो कमीशन में क्या क्या रहना, ठीक है, कौन कौन रहना। Members रहना।
Please read. The chairperson and members are appointed by the governor on the recommendation of a committee consisting of CM as its head, the Speaker of Legislative Assembly, the State Home Minister, and the Leader of Opposition in the Legislative Assembly. तो अगर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करना है तो एक कमिटी बनती जिसका हेड कौन रहते हैं? चीफ मिनिस्टर. whose head will be चीफ मिनिस्टर. उसके साथ कौन रहते हैं? स्पीकर रहते हाँ, और स्टेट होम मिनिस्टर minister रहते और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. हैं। ठीक है, नेक्स्ट. In और the कौन case अपॉइंट of करते हैं? गवर्नर अपॉइंट करते जी, जी sir. In the case of a state having legislative council, the chairman of the council and the leader of opposition in the council would also be a member of committee. हैं. तो अगर अगर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है असेंबली के अलावा तो हम्म, chair he will also be the member of the committee. ठीक है. फिर opposition leader मतलब वो जो काउंसिल में भी legislative रहेंगे ना. council के इन द बीच। केस ऑफ अच्छा। असेंबली है चेयरमैन एंड काउंसिल हम्म, and the leader of opposition in the council would also be the okay, members of the committee. member of committee. माने 6 मेंबर हो जाते हैं. अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो कमेटी में 6 मेंबर है. अगर PM, खाली असेंबली है तो 4 लोग. opposition leader. Yes sir, chairman. 106 क्वेश्चन क्या है? Let us go for 106th question. Next. Consider the following statement in relation to Right to Information Act 2005. So RTI कब आया? 2005. 2005 में आया RTI. So RTI के बारे में पढ़ना है. क्या पढ़ना है RTI के बारे में? देखिए, 106. Please read. it set out the rules and procedure regarding citizens' right to information and replaced the former Freedom of Information Act 2002. So पहले RTI तो आया 2005 में. इससे जी, पहले क्या था? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट Information 2002 Act था. 2002. ठीक है, नेक्स्ट. Okay. This act was enacted in order to consolidate the fundamental right of freedom of speech in Indian Constitution. टू कंसोलिडेट द फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 19. Yes. नेक्स्ट. Since RTI is implicit in the right to freedom of speech and expression under Article 19 of the Indian Constitution, it is an implied fundamental right. इज एन इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट. माने समझने का फंडामेंटल राइट है. हमने बता के नहीं बोलते, समझ जाना. नेक्स्ट. Section 4 of the RTI Act required suo motu disclosure of information by each public authority. माने सो मोटो माने खुद से. सेक्शन 4 क्या बता रहा? गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी काम हो रहा नोटिस बोर्ड पे लिख देना, ये काम हो रहा आज बोलो, खुद से. ठीक है, नेक्स्ट. Section 8 Clause 1 mention exemption against furnishing information under RTI Act. थोड़े थोड़े क्या है, सेंसिटिव ना रहते, इंफॉर्मेशन रहती, लेकिन सिक्योरिटी से रिलेटेड है. तो सेक्शन 8 क्या बता रहा है कि भाई अगर जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो नहीं दे सकते. क्या है वो पढ़ो. If the appellate authority, SPIO या CPIO or SPIO is satisfied with the non-disclosure of information, such information can be kept private for the larger interest of the public. So what is CPIO and SPIO? Central and State Public Information Authority. ऑफिसर.
ए है उधर, अच्छा ओ है, ए नहीं। तो ठीक है। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफिस अगर सेटिस्फाइड है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, इंफॉर्मेशन नहीं दिए तो बेहतर रहता भाई, तो आप नहीं रिजेक्ट कर दे सकते इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट। Section 8 Clause 2 provides for disclosure of information exempted under Official Secret Act 1923 if larger public interest is served. तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट माने डायरेक्ट गवर्नमेंट का ही अगर कुछ लार्जर इंटरेस्ट है, तो बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो दैट विल बी प्रोटेक्टेड बाय ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। ठीक है। एस 8 क्लॉज 1 क्या है, सीपीआईओ की बात कर, 8 क्लॉज 2 क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बात कर। ठीक है। तो नेक्स्ट। आरटीआई वाले क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो लोग? कलेक्ट में देना रहता, गवर्नमेंट ऑफिस में क्या काम कर रहा, अच्छा गवर्नमेंट का कैसा चल रहा, खर्चा पानी, अच्छा। गवर्नमेंट का खर्चा पानी कैसे चल रहा, पब्लिक से। पब्लिक के पैसों से। तो जिसका पैसा उसका, उसकी इंफॉर्मेशन। जी। उन लोग अपने ट्रस्ट में बट ये काम हाइड कर भी रहे कर। हैं, उन लोग अपने ट्रस्ट में काम कर रहे हैं कि भाई पैसा हम दे जी रहे हैं, सर। हम डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, तो पैसा दे दे रहे हैं। तो उन लोग अपने जी काम कर रहे हैं, अगर हमको इन्फॉर्मेशन होना तो हम जाके पूछ लेते। लेकिन ऐसी चीजें जी। क्या है जो सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे डिनाई कर सकते। ठीक है। अच्छा। नेक्स्ट। 107 तो इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिए तो सर क्या कर सकते क्या क्या चैलेंज करो, हाई कोर्ट में करो, सुप्रीम कोर्ट में करो। हैं? अच्छा। परसों है अरविंद केजरीवाल डिग्री दिखाओ बताया ना पीएम की, हम्म। डिग्री दिखाओ बोले, डिग्री पे हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करे। हाई कोर्ट वाले बोले कानून ना नहीं है तुम्हारा, 25,000 का फाइन मारा है, अपने से अपने काम से काम रखो बोले। जी। ठीक है, कभी कभी सर उल्टा ही पड़ सकता है। केजरीवाल को बोले ठीक डिग्री है। दिखाओ बोल के। केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर की डिग्री दिखाओ बताया, तो तो सर ऑथेंटिसिटी के दिखाना वास्ते। चाहिए। हाँ। तो हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट से अपने काम से काम रखो, दूसरों की डिग्रियों से क्या काम। बिल्कुल सर। 25 तो सर कोर्ट का वो टाइम ऐप नहीं वेस्ट बोल करे बोल के सकता। 25,000 रुपये फाइन मार। ठीक है। तो आप भी तो वो जाओ, रॉन्ग हुआ ना सर वो तो। कहीं तो रॉन्ग हुआ। नहीं भाई, वो डिग्री दिखाओ बोले तो वो राइट्स नहीं है क्या उसका? डिग्री दिखाओ बोले तो कहीं को दिखाना वो डिग्री, अब दिखाते डिग्री। नहीं, पीएम की डिग्री बोल रहा है ना सर। हाँ तो पीएम रखो। उनका कोई भी हक नहीं है ना वो पूछने का। आपको काम देखो ना, डिग्रियों से क्या काम है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है क्या डिग्री रहना बोल के? कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हम्म। है कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूं, क्वालिफिकेशन दिया यस। गया। हम्म। काम देखो ना, डिग्री क्या काम की। ठीक। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था तो डिग्री, डिग्री है बोले तो पहले क्वालिफिकेशन लाओ कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर पूछो। हम्म। खाली नाम बदनाम करना, सेंसिटिव न्यूज बनाना बोले तो कैसे, पब्लिक अथॉरिटी यस सर। काम, पब्लिक अथॉरिटी में काम इंपॉर्टेंट है, डिग्री काम के नहीं रहते। अशोका है, तो अशोका की क्या डिग्री थी एंशियंट इंडिया में, ग्रेजुएट थे नो क्या? डिग्री सर। अकबर है खाली लागत है। मिडिवल अकबर को इंडिया तो में, पढ़ना भी नहीं आता था ना सर। अकबर वॉज इलिटरेट बट ही वॉज द यस बेस्ट जी। एडमिनिस्ट्रेटर। यस। यस तो सर। पब्लिक लाइफ में डिग्रियां का रोल नहीं रहता, आप कितना अपना काम लोगों को मुतासिर कर सकते, इन्फ्लुएंस कर सकते, वो इम्पोर्टेंट है rather देन डिग्रीज। यस सर। नेक्स्ट। डिग्री तो एक सर्टिफिकेट है सर खाली। यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? 107। दिस इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के बारे में ही है। तो नेक्स्ट 107 पढ़ो।
They Public are Information Officers, PIOs. Public This question is about PIOs, Public Information Officers. पढ़िए. They are appointed by the President on the recommendation of a committee consisting of Prime Minister as chairperson, the leader of opposition of Lok Sabha, and the Union Cabinet Minister nominated by Prime Minister. तो क्या है, they are appointed by the President. जो Public Information Officer रहता, सेंट्रल पब्लिक ऑफिसर जो है, उसको अपॉइंट करने के लिए कमेटी बनाते. तो कमेटी में कौन कौन रहते? प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन रहता और एक अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर तो जो प्रेसिडेंट अपॉइंट. तीनों बैठते. एक तो प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनेटेड पर्सन एंड Yes. लीडर ऑफ अपोजिशन, तीन मेंबर कमेटी. Yes. आपको कंफ्यूज करने के लिए बता सकता, सीजीआई भी रहता. क्या बोलते? देयर इज नो सीजीआई इन दिस. नेक्स्ट. CGI देते relation. नेक्स्ट. They should not hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession. तो क्या है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स क्या रहना, कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं रहना और ना ही कुछ पढ़ते हुए रहना. एजुकेशन कंप्लीट हो जाना. नेक्स्ट. They are not eligible for reappointment. दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. फुल नॉलेज रहती है, एक बार रिटायर हो गए तो घर पे बढ़ जाना काम. ठीक है. दे कैन बिकम डेंजरस. Yes. The president can also remove the chief information commissioner or any information commissioner on the ground of proved misbehavior or incapacity. मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये जजेस के लिए भी यही है. ठीक है. नेक्स्ट. Yes. However, in these cases, the president has to refer the matter to the Supreme Court for an inquiry. तो अगर निकालना है, सुप्रीम प्रेसिडेंट क्या है, निकाल सकते हैं, लेकिन जैसा यूपीएससी के बारे में पढ़े थे, पहले सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी कराना, फिर अगर वो इंक्वायरी साबित हो गई तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम और हर. नेक्स्ट. In the Supreme Court, after the inquiry uphold the cause of removal and advises, so then the president can remove him. तो क्या है, सैलरीज प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम. उसके बाद हेलो, Government. द सैलरीज अलाउंसेस एंड अदर सर्विसेज. आप म्यूट हो गए थे. सैलरीज अलाउंसेस एंड अदर सर्विसेज of the CIC, Chief Information Commission and Information Commissioner shall be prescribed by the central government. ये क्या आपको कंफ्यूजन करने के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करे तो प्रेसिडेंट ही डिसाइड कर दे. नो, इट इज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. नेक्स्ट. ये भी आरटीआई के बारे में है, पढ़िए. The procedure of information disclosure after filling an application फाइलिंग can be done. आफ्टर फाइलिंग. Filing an application can be done in the process given below under RTI Act 2005. The procedure of information disclosure after the filing an application can be done in the process given below under RTI Act 2005. कैसा प्रोसीजर क्या है आरटीआई डालने का? The first request for information goes to the Assistant Public Information Officer and Public Information Officer designated by the public authorities. तो पहली रिक्वेस्ट किसको जाती? APIO, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. के बाद these officers are required to
provide information to an RTI applicant within 30 days of the request. तो 30 दिनों के अंदर उसको जवाब दे देना, अगर नहीं दे सके तो उसको क्यों नहीं दे रहे बोल के लिख देना। वो जी अपन पढ़े थे 8 क्लॉज 1 और 8 क्लॉज 2 के तहत क्यों yes sir. रिजेक्ट करे बोल के रीजन देना उसमें। नेक्स्ट, Appellate authority caters to the appeal against decision of a public information officer. अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है जवाब से तो आप क्या है, फिर जाके अगर आप पीआईओ, अगर असिस्टेंट पीआईओ नहीं दिया तो पीआईओ करने जा सकते हैं आप, पीआईओ नहीं दिया तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर करने जा सकते हैं आप, सीआईसी करने जा सकते हैं। जी उन्होंने भी नहीं दिया तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दिया तो दोनों बढ़िया खामोश। State नेक्स्ट, Information Commission or Central Information Commission listen to appeal against the order of the appellate authorities. Appellate authority. स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन लिजन्स टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ अपीलेट अथॉरिटी। मान जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है उन लोगों के ऑर्डर को चेक करते हैं लोग, सही है या गलत है। ठीक है, so we have completed 108 questions. Take a break of 10 minutes and we'll again restart from question number 109. Yes, sir.